Good morning everyone. So here we are back with English class. So in today's class we are going to start with our test paper as we have completed lesson 7 now. That is lesson 7, the unhappy dog. So I hope you all have completed your book work, class work, everything. Okay. So now what we are going to do is we are going to enter into the revision part, right? As we have completed the semester 1 part. So now we are going to do the test papers गिवन इन योर बुक. ठीक है, आपको बुक में पेज नंबर 61 and 62 in 2 pages there are given 2 test papers, that is test paper 1 and test paper 2. Okay, so first we are going to do that and then later we will be discussing about the paper pattern, how your paper will be conducted, what kind of questions are going to come, right? Everything, the revision and all of the things that we are going to discuss in upcoming week. But this week we are going to do the test papers given in your book. First we will complete the revision questions given in your book and then ma'am will give you some other questions. Okay, so let's get started. So all of you open your book, take out page number 61 and don't forget to write it along with me. Okay, the same topic that we have learned in earlier in lesson 1, lesson 2, that only we are going to do now. Okay, yes. So I will write down the heading. First of all, I will be explaining and then I will show you how to write it in your book. Okay? Yes. So, the heading of the revision is Test Paper 1. Test Paper 1. It is written like this in your book. Okay? So, the first question that we are going to do today is, we'll write down the question first. Write the words in alphabetical order. This is the question. ठीक है, आपको करना क्या है? राइट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. इससे क्या समझ में आ रहा है? आपको वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. सो व्हाट वर्ड्स यू हैव टू राइट? दैट इज गिवन इन योर बुक. सो फर्स्ट विल राइट द फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन इज कप, पेन, ग्लास एंड द लास्ट वन इज बुक. आपको ये 4 वर्ड्स फर्स्ट में दिया हुआ है. ठीक है, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपको मैं रिवाइज करवा दूं. पहले हमने लेसन 1 में अल्फाबेटिकल ऑर्डर पढ़ा था, दैट इज इन टुकी स्पॉट ऑफ अल्फाबेट. ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर वो होता है जहां पे हम अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट को लेकर के से सारे वर्ड को अरेंज करते हैं. ठीक है, एज इट इज गिवन इन योर डिक्शनरीज, है ना. हमारी जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है या हिंदी डिक्शनरी होती है उसमें भी हम सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दें. विच इज फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर दैट कम्स फर्स्ट. ठीक है, जो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसे ही हम फर्स्ट में रखते हैं. ठीक है, सो आपको 4 वर्ड्स दिए हैं. 4 वर्ड्स में से आपको पहले क्या करना होगा? फर्स्ट लेटर को मार्क करना होगा. राइट, सो विल सी फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड. इन कप, C is the first one. C is the first letter, right? And in pen, P is the first letter. In in glass, G is the first letter. And in book, B is the first letter. आया समझ में? सारे वर्ड्स में पहले हम फर्स्ट लेटर्स देखेंगे. तो कप में कौन सा है? C. पेन में P, ग्लास में G एंड बुक में B. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से पहले कौन सा वर्ड आता है. ठीक है, सो हम पहले इसको लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे. अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैं रिवाइज करा रही हूँ इसलिए यहाँ पे अलग से लिख रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लिख के बताती. ठीक है, सो फर्स्ट लेटर हमने यहाँ लिख लिया C, सेकेंड है हमारा P, थर्ड है G एंड फोर्थ है B. ठीक है, अब इसमें से आपको देखना है कि पहले कौन सा आता है. A B B, राइट. अब इसमें B है क्या? A तो नहीं था तो B है. यस, B है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट.
B के बाद C, C is the second one. D, E, F, G, H, बहुत आगे चले गए हम. तो C के बाद क्या आ रहा है? D, E, F, G, right? So here comes G. G is the third word. G is the third letter, sorry. And then the remaining will be the fourth one. ठीक है, तो जो लास्ट में बचेगा वो तो फोर्थ ही होगा, राइट? सो अब आपको क्या करना है? अब इस ऑर्डर के हिसाब से आपको इन वर्ड्स को अरेंज करना है. ठीक है, सो फर्स्ट में क्या आएगा? बी, बी फॉर बुक. सो फर्स्ट में आप लिखेंगे बुक. सेकेंड में सी है तो सी फॉर कप. थर्ड में जी है तो जी फॉर ग्लास. एंड द लास्ट पी फॉर पेन. आया समझ में? इस तरह से आपको बाकी दो क्वेश्चंस भी करना है. आपको कोई भी वर्ड्स देंगे, आपको हमेशा सबसे पहले फर्स्ट लेटर्स देख लेना है और उन फर्स्ट लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. बस इतना ही करना है. ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट था. अब हम इसी तरह से सेकेंड वाला देख लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट में क्या है? बुक. सेकेंड में कप. थर्ड में ग्लास एंड फोर्थ में पेन. नाउ सेकेंड वन पिंक. कलर्स के नेम दिए आपको पिंक, ब्लू, ग्रीन एंड द लास्ट वन इज रेड. क्लियर? अब आपको इसमें से फर्स्ट लेटर्स देखने पहले. सो फर्स्ट वन इज पी, बी, जी एंड आर. ठीक है, तो अब पी, बी, जी, आर हम लिख लेते हैं यहाँ पे. पी, बी, जी एंड आर. सो नाउ विल सी विच लेटर कम्स फर्स्ट. ए, बी. अगेन बी इज द फर्स्ट वन, राइट? सो विल मार्क इट 1. बी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई. सॉरी, जी तो आ ही रहा है, राइट? सो बी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी. सो जी इज द सेकेंड वर्ड, सेकेंड लेटर, राइट? जी के बाद H, I, J, K, L, M, N, O, P. So P comes third and the R is obviously the fourth letter, right? So now according to this order we will arrange this. So which one is the first one? B for blue. So we'll write blue in the first place and then G for green. G for green. Then P for pink. And the last will be red, right? समझ में आया? क्या किया मैम ने? फर्स्ट लेटर्स को मार्क किया एंड देन फर्स्ट लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया. उस हिसाब से हमारे ये सीक्वेंस बने. ठीक है, द थर्ड क्वेश्चन इज कैप, टैप, बस, टिन. कैप, टैप, बस, टिन. ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं फर्स्ट लेटर क्या क्या है. सी, टी, बी, टी. सी, टी, बी, टी. अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है अब तक आपने जितना पढ़ा है उसमें से. कैसे? अभी तक मैम ने क्या बताया था आपको कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट लेटर को अरेंज करना है. तो फॉर एग्जाम्पल आपकी दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनके फर्स्ट लेटर सेम है. कौन कौन से? टैप एंड टिन. तब आप क्या करोगे? फिर किसको पहले लिखोगे? यस, फॉर दैट ऑल्सो देयर इज अ ट्रिक. व्हाट यू हैव टू डू इज, आप फर्स्ट लेटर देख लिए, फर्स्ट लेटर तो दोनों सेम है. ठीक है, अब हम सेकेंड लेटर देखेंगे. तो टी के बाद यहाँ पे क्या है? ए और यहाँ पे आई. सो अब हम देखेंगे कि ए और आई में से कौन सा पहले आता है. सो ऑब्वियसली ए कम्स फर्स्ट. सो विच वर्ड वी विल राइट इन द फर्स्ट बिटवीन टैप एंड टिन? यस, टैप. हम टैप और टिन में से पहले वर्ड टैप लिखेंगे. क्यों? क्योंकि टैप में सेकेंड लेटर ए है जो कि आई से पहले आता है. ठीक है, सो नाउ विल सी which letter comes first out of these. A, B. So B is the first one and then C. C is the second one and then जैसे कि अभी मैंने कहा T के बाद A है तो A पहले आएगा. So this tap will be the third one and tin will be the fourth one. Okay, so I will write it here. Bus, cap, tap,
then tin. आया समझ में? Yes. So similarly you have to do all other exercises, all other questions related to alphabetical order. Clear? Yes. Now we will move on to the second question, that is question number B. So here I have written the second question, that is write these sentences using capital letters and full stop. There is nothing very big regarding this question. It is very simple. हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. What you have to do is आपको फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए. कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे आप, सबसे पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए. और अगर एक सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगा के भी आप नया आगे लिख रहे हो तो भी आपका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर. ठीक है. इसके अलावा अगर किसी पर्सन, किसी नेम, किसी प्लेस का नाम वगैरह आप लिख रहे हो तो अगर वो मिडिल में भी हो तो भी आप कैपिटल लेटर लिखते हो. ठीक है. सो दीज आर अबाउट कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप. सो हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आई फाउंड अ रेड बॉल. इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस? नो, क्योंकि सेंटेंस तो कहीं रुक ही नहीं रहा है. बॉल के आगे हमने फुल स्टॉप लगाया ही नहीं. फुल स्टॉप मीन सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो रहा है. बट यहाँ क्योंकि हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो हम क्या समझे कि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है? नहीं, ये सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है. सो हम देख लेते हैं. फर्स्ट लेटर हमें कैसे लिखना है? कैपिटल. सो विल राइट कैपिटल आई हियर. आई फाउंड अ रेड बॉल. फुल स्टॉप. आया समझ में? Similarly, the second one, Hamid is playing chess. Again, it is incomplete. Why? Because the first letter is not capital. Also, there is no full stop. Right? So, we will correct this. Capital H लिख करके Hamid is playing chess. Full stop. Okay. Third one, I have a blue pen. Again the same like the first one. I is written in small and there is no full stop in the end. So we will correct it. How we will write it? Capital I have a blue pen. Full stop. Okay. So, इसी तरह से आपको कोई भी सेंटेंस आएगा तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है? फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड देयर शुड बी अ फुल स्टॉप इन द एंड. वेयर एवर यू आर कंप्लीटिंग योर सेंटेंस, यू आर एंडिंग योर सेंटेंस, यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप देयर. क्लियर? Also, if there is mentioned a person's name or a place name, so you have to write capital even if it is in the middle also. ठीक है. अगर बीच में भी हो तो पर्सन या प्लेस का नेम लिख रहे हैं आप, कोई ऐसे स्पेसिफिक स्पेशल नेम लिख रहे हैं तो आपको कैपिटल लिखना है. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चंस गिवन इन योर बुक. Question number A and question number B we have completed here. So I hope you have understood all the questions. Now write it in your textbook. Okay, on page number 61. Page number 61 के 61 पे आपको ये mentioned है. यहाँ पे आपको लिखना है. ठीक है. Okay. So this is it for today. Now in next class we will be discussing question number C and question number D. Okay. Good day everyone.